वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जेई मेन का 29 जैन का शिफ्ट 1 का ऑर्गेनिक का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर पहले तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। दिस पेपर इज टोटली मैकेनिज्म बेस्ड, थोड़ा अच्छा पेपर था, राइट। चलिए लेट मी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारे पास एक रिएक्शन का सीक्वेंस गिवन है और वी हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट पी। ओके, राइट। सो दिस वन इज स्टाइरीन, famous compound, acid catalyzed hydrolysis, chromium trioxide H plus, then hydrogen QH followed by heating. So let me solve. Styrene, hydronium ion, acid catalyzed hydration, Markovnikov rule. Markovnikov rule, it means addition of alcohol takes place on the second carbon. So we got the 2-degree alcohol, right? Then chromium trioxide. Chromium trioxide is oxidizing agent, or this one is 2-degree alcohol. It will oxidize the 2-degree alcohol, secondary alcohol into the ketone. So we got the ketone. Okay, then finally this sequence is WKR, Wolff-Kishner reduction, basic medium followed by heating. It will convert the ketonic group into the CH2 group. So we got the finally ethyl benzene. So ethyl benzene will be the final product P. This one will be the first question. Okay, then लेट मी एक्सप्लोर द सेकंड क्वेश्चन। आप भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं और चेक करते जाएं कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज cyclohexene is given. Cyclohexene is given and it will react with chlorine and in presence of ultraviolet light, or here this one is CCl4. So in this reaction we got the A, in this reaction we got the B as a major product. So we have to identify the A and B, वो हमें identify करना है। So it is so simple. Solution देखें, let me explore. Cyclohexene when react with chlorine in presence of ultraviolet light. So this reaction is a free radical substitution. This one is FSR, free radical substitution, राइट। और दिस वन इज अलाइलिक कार्बन, और यहाँ पे अलाइल रेडिकल प्रोड्यूस होगा विच इज स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस। सो दिस अलाइलिक हाइड्रोजन विल रिप्लेस बाय द क्लोरीन। सो व्हाट वी विल गॉट, वी गॉट दिस प्रोडक्ट। सो मैकेनिज्म इज FSR, और CCl4 in the presence of CCl4 mechanism is EAR. it means electrophilic addition. एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक पाई बॉन्ड के ब्रेकअप होने से we got the 2 sigma bond and we got the finally this product. That will be the A and that will be the B. These are the answer of this question. Okay, next question number third. Question number third is हमारे पास एक reactant given है. This one is benzene and this one is ether, or again styrene. This one is styrene. It will react with concentrated HBr and Xs and followed by heating. So we have to identify the final product, concentrated HBr, Xs followed by heating, and we have to identify the final product P, right? So this one is styrene, this one is ether. Ether में देखो, this one is primary carbon. So primary carbon, when the ether consists of primary carbon and when it will react with HBr, mechanism is SN2, और HBr double bond, यहाँ मैकेनिज्म होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड इन दिस SN2 विल टेक्स प्लेस। इस पॉइंट पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन जनरेट होगा और यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा। तो व्हाट वी विल गॉट, वी विल गॉट द Br, और यहाँ पे वी गॉट द फिनॉल प्लस वी गॉट द इथाइल ब्रोमाइड। सो दिस रिएक्शन विल स्टॉप एट दिस स्टेज, क्योंकि फिनॉल not further react with HBr because phenol is resonance stabilized. So reaction यहाँ जाकर के stop हो जाएगी। Okay ना? So that will be the correct answer of this question. Okay, then let's move to the question number 4th. देखो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या गिवन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4th में है ये GOC के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ना। GOC में क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन विच इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एडजेसेंट एटम। ओके ना, इट मींस क्या कहना चाह रहा, मान ली पाई बॉन्ड है और ये लोन पेयर है ना, तो यहाँ कौन सा इंटरेक्शन होगा। तो लोन पेयर मींस मान लीजिए लोन पेयर है और मान लीजिए हमने ये मान लिया कार्बन एटम है। सो व्हाट विल बी टाइप ऑफ द रेजोनेंस, मतलब ये एक तरह का रेजोनेंस होगा
and we got these two structures. So options are resonance, hyperconjugation, inductive effect and electronic effect. So the correct answer is resonance. या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, this one is aniline, जैसे मान लीजिए aniline है और ये लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, this will be the resonance stabilize. यहाँ भी resonance ही हो रहा है. चलिए next, move to the question number 5. Fifth question is so simple, it is based on the biomolecule amino acid. Question is type of amino acid obtained on the hydrolysis of the protein will be. Very famous question. प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस पे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस पे वी गॉट द अल्फा अमीनो एसिड. प्रोटीन इट इज अ टाइप ऑफ ए पॉलीमर और जब ये हाइड्रोलाइज होगा सो व्हाट वी विल गॉट द अल्फा अमीनो एसिड एज ए मेजर प्रोडक्ट. ऑप्शन रखा है अल्फा, बीटा, गामा एंड सो ऑन. टोटली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी लाइन, है ना. बड़ा ही आसान क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इज, ये हमारा ओजोनोलाइसिस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. हमारे पास एक स्ट्रक्चर गिवन है इस तरह की, यहाँ H गिवन है, यहाँ H है, ये ट्रांस एल्कीन, यहाँ दे रखा है ओजोन और जिंक प्लस वाटर और यहाँ दे रखा है प्रोडक्ट P. तो क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल इन द प्रोडक्ट P विल बी, राइट. तो दिस वन इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस. रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं हम? डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन पेस्ट करते हैं. सो व्हाट वी विल गॉट? वी गॉट द 2 moles ऑफ एसिटाल्डिहाइड. वी गॉट द 2 moles ऑफ एसिटाल्डिहाइड, है ना. तो यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल, यहाँ पूछा गया है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल इन द प्रोडक्ट P विल बी द, so the correct answer will be the 1. पर मॉलिक्यूल में ओनली सिंगल ऑक्सीजन है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा बेस्ड है फेलिंग सॉल्यूशन, वेरी फेमस टेस्ट, उसके ऊपर बेस्ड है. हमारे पास कुछ कंपाउंड की लिस्ट है और दे रखा है हाउ मेनी कंपाउंड विल गिव द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट. हाउ मेनी कंपाउंड गिव द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट. अब इसमें हमारे पास कंपाउंड में कॉमन नेम है और आईपीसी नेम भी गिवन है. तो दैट विल बी द, हमारे पास है, देखो फर्स्ट ऑप्शन इज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज CH3COOH. नेक्स्ट इज एनिलिन. एनिलिन देखो इस तरह का है. चलिए फिर है एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड CH3CHO. देन नेक्स्ट इज एसीटोन CH3COCH3. देन नेक्स्ट इज इथेनॉइल क्लोराइड. इथेनॉइल क्लोराइड इज दिस. नेक्स्ट इज 2-methyl प्रोपेनॉल्डिहाइड. ये तो पहले तो हमें इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी. आपको यदि स्ट्रक्चर नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे. नेक्स्ट एक बहुत ही फेमस कंपाउंड प्रोटोन एल्डिहाइड. प्रोटोन एल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? प्रोटोन एल्डिहाइड इज दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. ये जो ग्रुप है इसका नाम है प्रोटोन और ये CHO से कनेक्टेड है, तो प्रोटोन एल्डिहाइड. देन नेक्स्ट इज बेंजल्डिहाइड. बेंजल्डिहाइड इज एरोमेटिक एल्डिहाइड. नेक्स्ट इज बेंजीन कार्बोक्सामाइड. बेंजीन कार्बोक्सामाइड कुछ इस तरह का है. और फाइनली लास्ट ऑप्शन इज इथाइन. दैट विल बी द, दीज आर द ऑप्शंस. तो चलिए लेट मी स्टार्ट. फेलिंग सॉल्यूशन पहले तो देखें फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या. इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन A and B. फेलिंग सॉल्यूशन A is aqueous solution of copper sulfate, whereas फेलिंग सॉल्यूशन B is सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, है ना. तो बेसिकली ये एल्डिहाइड टेस्ट देता है. तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड नो, एनिलिन नो, एसिटाल्डिहाइड यस डेफिनेटली, एसीटोन नो, कीटोन नहीं देता. एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए वी हैव टू यूज द फेलिंग टेस्ट. ऑयल क्लोराइड नो, एल्डिहाइड डेफिनेटली यस, एल्डिहाइड यस पॉजिटिव टेस्ट. एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट देना चाहिए बट ये टेस्ट नहीं देता. वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ना. बेंजामाइड नहीं देगा. और ये इथाइन, इथाइन में देखो एसिडिक H है. इथाइन में एसिडिक H होने से ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे सकता है ना. तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट हम एक्सप्लोर करते हैं. Next question is 8 number is areninium ion which will not formed in the bromination is. देखो एनिलिन है तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एनिलिन का ब्रोमिनेशन हुआ तो एनिलिन के ब्रोमिनेशन के दौरान नॉट फॉर्म्ड
कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है वो आपको एक्सप्लोर करना है ना, दैट विल बी द क्वेश्चन है ना। तो एनिलीन ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा, तो मैकेनिज्म ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दैट विल बी द मैकेनिज्म। अब एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो बी आर कहाँ कहाँ अटैच होगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। सो व्हाट वी गॉट द ऑर्थो ब्रोमोएनिलीन एंड वी गॉट द पैरा ब्रोमोएनिलीन एज ए मिक्सचर, है ना। ब्रोमीन वाटर होता तो तीनों पोजीशन पे एक साथ अटैक होता 2,4,6 पोजीशन पे, सो वी गॉट द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन, बट इन दिस केस वी गॉट दिस प्रोडक्ट, है ना। उसके अकॉर्डिंग यहाँ ऑप्शंस है यहाँ कि कौन सा इंटरमीडिएट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव द सल्फर एज ए हेटेरोएटम। यहाँ कुछ कॉमन नेम गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। सल्फर एज ए हेटेरोएटम, सल्फर एज ए हेटेरोएटम। अब आपको उनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। फर्स्ट कंपाउंड इज फ्यूरेन, पहले तो नेम देख लेते हैं, फ्यूरेन, एंड नेक्स्ट इज थायोफीन, then next is pyrrole, then next is cysteine, then next is tyrosine, and last is tryptophan. This one is tryptophan. Okay, so देखो फ्यूरेन इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। फ्यूरेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है, 5 मेंबर्ड रिंग, ऑक्सीजन का एज ए प्रेजेंट एज ए हेटेरोएटम। थायोफीन में हेटेरोएटम कौन सा है जी, यहाँ है सल्फर एज ए हेटेरोएटम। पायरॉल में 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ हेटेरोएटम कौन है जी, यहाँ है हेटेरोएटम नाइट्रोजन, ओके ना। तो फ्यूरेन थायोफीन में सल्फर एज ए हेटेरोएटम है, प्रेजेंट है। सिस्टीन इट इज ए टाइप ऑफ अमीनो एसिड और इसमें भी सल्फर एज ए हेटेरोएटम है। थायरोसिन और ट्रिप्टोफैन it is also an example of the amino acid, but they don't consist of the sulfur as a heteroatom. It means only thiophenes और cysteine में हमारा आपका sulfur as a heteroatom present है, तो correct answer will be the 2. Okay, तो अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, based on the common name of the compound. And final question of organic in this attempt will be 10 number is appearance of red color on treatment with sodium fusion extract of an organic compound with ferrous sulfate in presence of concentrated H2SO4 and the element will be, है ना। ये क्या कह रहा है, appearance of red color कहाँ पे होगा, on treatment with sodium fusion extract of an organic compound, है ना, और in presence of ferrous sulfate and in presence of concentrated H2SO4, राइट। सो द एलिमेंट प्रेजेंट विल बी, ये पूछ रहा है। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑप्शन आ, देखो ऑप्शन देता हूँ, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर होगा, तो फेरस सल्फेट और कंसंट्रेटेड H2SO4 से थायोसाइनेट बना लेता है। थायोसाइनेट क्या होता है, थायोसाइनेट विल बी HCl, थायोसाइनेट विल बी द फॉर्मूला ऑफ थायोसाइनेट इज HCl, वो प्रोड्यूस कर लेता है। इट मींस कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन एंड सल्फर विल बी द प्रेजेंट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।